So good morning, friends. Good morning. So today I'm going to speak on the topic called the different types of stock or funds, you can say. So normally, being an investor, people get confused that which are the stocks or which are the funds one should go for, or there are a lot many things basically in terms of return, in terms of risk, uh, which one is going to be the best for anybody. So we'll have a detailed discussion on these things, and these are nothing but the large cap, mid cap, and small cap, be it funds or stocks. So basically, let's understand what is the difference between these three things: large cap versus mid cap versus small cap. As I said, there has always been a talk regarding the need to select the right kind of scheme. Right. One of the debate that often comes up is whether to invest in a large cap or a mid cap or a small cap fund. In other words, in what size companies should I invest in? First, let's understand what are the large cap funds, what are the mid cap funds, and what are the small cap funds. So you can see this pyramid, it's clearly showing. So large cap funds are the funds or the stocks, you can say, having more capitalization. Mid cap, it's like mid size in the size wise, and the small cap, the smaller one. So basically, any stock or any company having market of less than 5,000 CR are called small cap fund, small cap stock, small cap companies. So they may have significant growth potential. At the same time, they are more volatile and carry higher. Whereas mid cap, so the size wise, as per their market cap is in between 5,000 CR to 20,000 CR. So they are more volatile than large cap, with a potential to soon turns into a large cap company. Whereas large cap companies are having market capitalization of more than 20,000 shares, 20,000 CR. These companies have been around for decades and are more of often the dominant player in their industries. They are considered matured and stable companies. So यहाँ इस बात को समझने की जरूरत है. There are three types of companies. There are three types of stocks: small cap, mid cap, and large cap. लार्ज कैप कंपनियां वो कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 CR से ज्यादा है. वहीं मिड कैप कंपनियां वो कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 CR से लेकर 20,000 CR. एंड स्मॉल कैप आर द वन जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 CR से कम. तो देयर इज अ वेरी गुड सेइंग. ऐसा माना गया है, ऐसा बोला जाता है कि आज की स्मॉल कैप कल की मिड कैप है, एंड आज की मिड कैप कंपनी जो है कल की स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है. यस, बट इट डिपेंड्स कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में, उन कंपनियों में क्या ग्रोथ है. ठीक है, इन सब पे डिपेंड करके ही वो होता है. प्रोसेस वही है कि स्मॉल कैप कल को मिड कैप बनेगा, मिड कैप कल को लार्ज कैप बनेगा. लेकिन अगर अंडर परफॉर्मेंस चला गया, मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी आ गई, ठीक है, नेगेटिव फैक्टर्स कुछ ऐड होते चले गए, तो मामला गड़बड़ भी हो जाता है. सो लार्ज कैप आर द
इंडस्ट्री लीडर्स बोल सकते हैं जो काफी टाइम से हैं, स्टेबल हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट, एक होता है ना कि आंख बंद करके भरोसा करना, वो चीज आप लार्ज कैप कंपनियों के साथ कर सकते हैं। एंड रीजन इज वेरी क्लियर, दे आर मोर स्टेबल, सो रिस्क कम होता है, एंड चूंकि रिस्क कम होता है, रिटर्न्स भी कम होते हैं इन कंपैरिजन टू मिड कैप एंड स्मॉल। मिड कैप में इट्स लाइक मिड साइज कंपनियां होती है, इन कंपैरिजन टू स्मॉल कैप इसमें रिस्क कम होता है, लार्ज कैप के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो रिटर्न्स देने की कैपेसिटी भी इन कंपनियों में, ग्रोथ पोटेंशियल जो है लार्ज कैप कंपनियों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो चूंकि रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलने के चांस। एंड वही द फाइनल थिंग जो है बोलना चाहूंगा, दैट इज स्मॉल कैप, दीज आर द हाईली वोलाटाइल एंड रिस्की काउंटर्स, जिनको जहां रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड एज आई सेड, रिस्क ज्यादा है, सो अगर सही कंपनी नहीं चूज किया तो आपके पैसे डूबने के भी चांस रहते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो कॉमन नॉलेज बिलीव दैट लार्ज कैप फंड आर फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, जो अभी हमने बात किया, reasonable returns with lower volatility with the equity space, while small cap are the bet for investor looking for potentially higher returns, albeit with higher volatility. Many investors, particularly the new breed of investors, uh, don't seem to fancy the large cap, as they are not as exciting as mid cap and small cap from the potential return perspective. The question which arises is it true? Do small caps always beat the large cap? Should an investor looking for high returns avoid the large cap? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है बट रिटर्न देने के भी चांसेस ज्यादा है, मिड कैप में भी अगेन रिटर्न के चांसेस ज्यादा है, लेकिन क्या ये हमेशा होता है कि स्मॉल कैप लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न देता है, या मिड कैप लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न देता है? ठीक है, तो इस पर एक डिटेल एनालिसिस करते हैं, जिससे आपको एक समझ आएगी कि किस तरीके के रिटर्न्स इन सभी कैटेगरीज में हमें मिलते हैं। हम चूंकि म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, सो म्यूचुअल फंड वाइज हम देखते हैं। सो परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटी स्मॉल कैप स्कीम्स, आप देखिए, देयर आर वेरियस फंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी में। सो यू कैन सी इनका एयूएम किसी का 3000 करोड़ है, किसी का 7000, किसी का 8000, लाइक दैट। हाईएस्ट निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का 17000 करोड़ का भी है। पिछले एक साल में, बाय द वे ये डेटा 8 नवंबर 2021 का है, सो आज ऑन 8 नवंबर 2021 एक साल का डेटा, 3 साल का डेटा और 5 साल का डेटा यहाँ पे लिया गया है। तो आप देख सकते हैं हर एक फंड ने एक साल में 82%, 77%, 100% आईसीआईसी प्रू स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप 102% भी दिया है, एल&टी इमर्जिंग 101%, हाईएस्ट जो है क्वांट स्मॉल कैप ने दिया है 119%, एंड इसके अलावा 70-80% तो ऑलमोस्ट सभी फंड ने रिटर्न दिया एक साल। तो इट्स लाइक 100% रिटर्न, मतलब एक साल में पैसा डबल हो गया। लेकिन जब बात 3 साल की देख रहे हैं, पिछले 3 साल में, सो ये ड्रॉप हुआ है ड्रास्टिकली, 18%, 32%, 21%, 24%, 37%, लाइक दैट। हाईएस्ट इज 37% क्वांट स्मॉल, एंड 5 साल में। सो बेसिकली just to see the consistency of a particular fund, it's one of the major criteria to choose a particular fund, especially when you are going for a long term. तो ये देखना जरूरी होता है। कई बार क्या है ना, कुछ फंड अचानक से कुछ रीजन रहे होंगे
3 महीना 6 महीना 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देती, बट ये देखना जरूरी है कि आर दे कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो आप देखिए पिछले 5 साल में सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन है, तो एंड हाईएस्ट रिटर्न किसने दे रखा है। तो अगेन द क्वांट हैज गिवन 22%, एक्सिस स्मॉल कैप हैज गिवन 21%, सो इट्स वेरी गुड रिटर्न। अदरवाइज आदित्य बिरला जो 1 ईयर में 82 दिया था, 5 साल में जब देख रहे तो इट्स 12%। ऑफ कोर्स 12% इज आल्सो नॉट बैड, बट देन इन कंपैरिजन टू अदर फंड जब हम देखते हैं, सुंदरम स्मॉल कैप 13%, सो लोएस्ट है। हाईएस्ट में कौन कौन है, क्वांट स्मॉल कैप 22, एसबीआई स्मॉल कैप 21, राइट, HDFC small cap 19.59, almost 20, and Axis small cap 21.39. So these are the performance of equity small caps, which is really commendable. There are various funds जहां पे डॉट डॉट दिखा रहा है, इसका मतलब ये सारे फंड 3 साल पहले नहीं थे, 5 साल पहले नहीं थे, तो वो डेटा अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, एक सेकंड सर, ये क्यों ऐसा है कि 1 साल में 100% जा रहा है और 3 साल और 5% 5 साल में कम होता जा रहा है? हाँ, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड इट्स बेसिकली it's a pool of money from the investor, and the fund manager invest those funds in different stocks. एक पर्टिकुलर फंड में 50-60 स्टॉक्स होते हैं। सो 1 साल में 100% रिटर्न दिया है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर फंड्स जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करी थी, वो कंपनियां का प्राइस इतना ज्यादा ग्रो हुआ था बोल के ये म्यूचुअल फंड 100% रिटर्न दिया। लेकिन 3 साल में जब हम देख रहे हैं तो मतलब पिछला 1 साल में रिटर्न दिया अच्छा, तो इसके लिए 100% हो गया, लेकिन उसके 1 साल पहले शायद इतना रिटर्न नहीं दिया था या रिटर्न ही नहीं दिया था, उसके पहले और रिटर्न कम हुआ था। तो एवरेज जब 3 साल का हम देख रहे हैं तो क्या पा रहे हैं कि रिटर्न घट गया। आप समझे? यस, सो स्टिल 18%, 20% इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। ऐसा नहीं होगा कि इस साल 1 साल दिया 100% रिटर्न दिया तो अगले साल भी 100% रिटर्न, दैट वो वोलेटाइल। So I hope you understand. Now let's see the mid cap schemes performance. Again there are list of funds जिनका AUM अगर हम बात करें तो again there are 3,000, 15,000 like that. HDFC mid cap 31,000 crore वो लोग मैनेज कर रहे हैं। कोटक इमर्जिंग 16,000 like that. अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 1 साल में मिड कैप का परफॉर्मेंस क्या है, तो अगेन 3 डिजिट में इनका कोई भी नहीं है, बट यस स्टिल इट इज गुड। 76%, 75% बहुत सारे फंड ने दिया, 78%, 80%, 90% में भी कोई नहीं है, 83% क्वांट मिड कैप फंड। लेकिन 3 साल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। लेकिन हाँ एक चीज है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिन्होंने 30+% का भी 3 साल में रिटर्न दिया है, 20+% तो मैक्सिमम फंड ने दिया है। कुछ ही फंड ऐसे हैं जो 20 के नीचे। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट मिड कैप, जबकि स्मॉल कैप में ऐसा नहीं था। एंड 5 इयर्स की अगर हम बात करें तो अगेन फिल्ट्रेशन जो है कंसिस्टेंसी देखने के लिए, तो हाईएस्ट एक्सिस मिड कैप ने दिया है 21%, क्वांट मिड कैप ने भी 20+% रिटर्न दिया है, 21% PGIM इंडिया ने दिया है, बाकी जो है 13, 14, 15, 18 ऐसे करके दिया है। सो हियर वी आर गेटिंग एन एक्सेस कि ठीक है 1 साल में क्या है, और जब कंसिस्टेंसी की बात आ रही है तो वो लोग कहाँ टिक रहे हैं। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन कैन टेक ए कॉल। नाउ लेट्स सी इक्विटी लार्ज कैप स्टॉक्स, दीज आर द मोर स्टेबल बोलते हैं, बट
स्टेबिलिटी की जब हम बात करें, सो 1 ईयर का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो कोई भी 60% के ऊपर भी नहीं है। टाटा लार्ज कैप फंड 59 है, अच्छा निप्पॉन इंडिया 66 है, अदरवाइज 58 है, बाकी 54, 55, 56, 40 प्लस में बहुत सारे। 3 साल में जब आप देखते हैं तो अगेन बहुत सारे फंड 20 प्लस में है एंड द मैक्सिमम आर लाइक 15 प्लस। एंड 5 साल में जब आप देखते हैं तो वेदर इट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, क्या आप देख पा रहे हैं कॉमन चीज? Not much difference, sir. नॉट मच डिफरेंसेस, वही 20 के आसपास जो बेस्ट परफॉर्मिंग है, कहीं पर भी आप 30 प्लस भी नहीं देख पा रहे। ऑल आर लाइक थोड़ा 20 प्लस या 20 माइनस में अटके हैं। देखिए ये स्मॉल कैप की कहानी है, ये मिड कैप है, ये लार्ज कैप, ठीक है। सो when we talk about equity investing, equity mutual fund, be it large cap, mid cap, small cap, when it is a long term thing, long term story, चीजें जो है एक्यूमुलेट होके प्लस माइनस होके बराबर हो जाती, ये तो अपने को क्लियरली दिख रहा है। सो द लेसन इज वेरी क्लियर, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में फंडा में मत पड़िए, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग टर्म। इट्स बेटर यू डाइवर्सिफाइड योर पोर्टफोलियो, लार्ज कैप में भी रखिए, मिड कैप में भी रखिए, स्मॉल कैप में भी रखिए। टेम्पोररी में हो सकता है कोई ज्यादा रिटर्न दिखाए, कोई कम रिटर्न दिखाए, बट जब लॉन्ग टर्म की बात आ जाती है, ये कंफर्म है कि इक्विटी जो है एवरेज रिटर्न समवेयर बिटवीन 17 to 18% के बीच देती है, ठीक है, एंड व्हिच इज अ वेरी गुड रिटर्न बाय द। यहाँ पे एएमसी वाइज स्कीम परफॉर्मेंस 1 ईयर का देखिए, सीधा बात है। यहाँ पे 3 लाइन है, लार्ज कैप द ब्लू लाइन, मिड कैप द मिडिल वन ऑरेंज एंड स्मॉल कैप दिस ग्रे लाइन। आप देखिए 1 ईयर में वेदर इट इज आदित्य, एक्सिस, एनी फंड हाउस, टाटा, सुंदरम, एसबीआई, निप्पॉन, कोटक, दिस लार्ज कैप वाला लाइन जो है नीचे में ही है। थोड़ा 1-2 ओकेजन आप कहीं पे देख पा रहे होंगे जहां पे मिड कैप के साथ थोड़ा टच हुआ है, अदरवाइज इट इज एट द लोअर साइड ओनली। मिड कैप का परफॉर्मेंस ऊपर है, देयर आर ओकेजन जहां पे मिड कैप को थोड़े टाइम के लिए बीट किया था, स्मॉल कैप को टच किया था मिड कैप ने, अदरवाइज मिड कैप का परफॉर्मेंस भी कम ही था, जो कि हमने डेटाज में भी देखा, एंड स्मॉल कैप हैज गिवन बेटर रिटर्न। सो क्या कारण है सर इसका? मैं आपको बीच में इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ, वो स्लिप कर जाते हैं फिर क्वेश्चन। नहीं, दैट्स फाइन। तो अगर आप देखेंगे पिछला 1 साल में, अभी 2-3 महीना को छोड़ दीजिए, पिछला 1 साल में मार्केट जब 42,000 से गिर के 25,000 के आसपास आया था एंड वहां से ग्रो करके 60,000 में गया था। हाँ। तो मार्केट में जब इस तरह के रैली आती है तो सबसे पहले लार्ज कैप चलते हैं। तो लार्ज कैप में क्या होता है कि ऑलरेडी वो डेवलप होते हैं कंपनियां, है ना, सो एक लिमिटेशन होता है। उसके बाद मिड कैप चलते हैं एंड सबसे ज्यादा जो रैली होता है स्मॉल कैप कंपनियों में। तो वो जो रैली 25,000 से लेकर 62,000 तक का जो चला था मार्केट, उसमें स्मॉल कैप कंपनियां के पैसे, बहुत सारे ऐसे कंपनियां थे जो डबल हो गए थे उनकी प्राइस। हाँ, तो उसका इम्पैक्ट आपके फंड में भी पड़ेगा ना, म्यूचुअल फंड में भी पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही कंपनियों में पैसा लगा रखा। ओके। तो मार्केट ने रैली जब भी लिया है, स्मॉल कैप कंपनी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अभी जैसे मार्केट गिर चुका है, हाँ। और कल को फिर टर्न अराउंड होता है, मार्केट यहाँ से बढ़ने लगेगा, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू पुट मनी इन स्मॉल कैप कंपनी, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी फिर भागेगी। फर्स्ट राउंड में लार्ज कैप दौड़ेंगी, फिर सेकंड राउंड में मिड कैप, थर्ड राउंड में स्मॉल कैप। और वो मोमेंट को अगर आपने पकड़ लिया सही तरीके से, तो आपका पैसा 6 महीना में डबल हो सकता है, 1 साल में डबल हो सकता है, लाइक दैट, ऐसा होता है। So in figure A, we have the 1 year returns for all the funds for the 3 categories, large, mid and small.
in which the data is available, we notice that there is a hardly any overlapping of returns, and that the small cap funds are the clear winners. Should we conclude that small caps are always the best? No. Probably in figure B, अभी figure B को देखिए, we see a different picture. The return smoothen out when we see performance over 5 years. 5 साल का जब देख रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं लार्ज कैप ने कितनी बार बीट किया है, मिड कैप ने कितनी बार बीट किया है. ओवरऑल स्मॉल ने ज्यादा रिटर्न्स दिया है एंड ऑफ द डे. नॉट ओनली दैट, फंड वाइज अगर हम बात करें तो आदित्य बिरला में वहां पे क्लास हो गया, एक्सिस में क्लास हो गया. इधर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 5 साल में भी उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है. निपोन ने भी कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है जहां पे स्मॉल कैप ने ज्यादा रिटर्न दिया है. सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जंबल हो रही है. द गैप बिटवीन द रिटर्न ऑफ द लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स ऑफ इवन द सेम एएमसी इज नैरो. मतलब ऑलमोस्ट जो हमने देखा ना कि 5 साल में का फिगर जब हम देख रहे हैं, सो बी इट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों ही का रिटर्न मोटा मोटी बराबर में आ गया. The return provided by the mid cap and small cap funds run along a similar trajectory. In fact, if we look closely at the fund houses of Aditya Birla, Axis, Franklin Templeton, return of all the categories are quite similar. A point here to consider is that large cap and mid cap have historically shown lower volatility over a small cap, and yet return are quite close, which means on a risk-adjusted basis, large cap did better over 5-year period. Does it mean that one can conclude large cap dare better for long term? So हम बात कर रहे हैं कि बिना रिस्क लिए जब हम लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं अल्टीमेटली रिजल्ट तो उतना ही आना है, तो क्या लार्ज कैप कंपनियों पे ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए? तो द आंसर इज अगेन नो. सो मार्केट के साथ क्या है ना, उसका एक फेज चलता है, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का. सो डिफरेंट फेज में इररिस्पेक्टिव ऑफ एंड ऑफ द डे हम देख पाते हैं कि मोटा मोटी रिटर्न्स तीनों कैटेगरी में बराबर हो जा रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ दैट, इस चीज को समझने की जरूरत होती है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है. एंड व्हेन यू आर क्लियर कि नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे बीच में प्रॉफिट भी बुक नहीं करना है, आई हैव टू स्टे इन्वेस्टेड, सो फिर तो लार्ज कैप इज द सॉल्यूशन. ठीक है, रिटर्न 1-2% ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत ही नहीं. बट यू आर द पर्सन जिनके अपने शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मीडियम टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स भी हैं, और थोड़ा सा आप वोलेटिलिटी को एंजॉय करते हैं. ठीक है, आपकी हार्टबीट नहीं बढ़ती है, आप बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, सो इन दैट केस स्मॉल कैप आपके किटी में जरूर से होना चाहिए. ठीक है, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बहुत इजीली देख के समझ सकते हैं. दिस इज द लास्ट स्लाइड. देखिए यहाँ पे, हियर इट हैज गिवन द डेटा ऑफ 10-year परफॉर्मेंस. Finally, let's look at 10-year performance of large, mid, and small cap. The data suggests that the mid and small caps have again outperformed. जब 10 साल की हम बात कर रहे हैं तो लार्ज कैप का परफॉर्मेंस अगेन कम रह रहा है, और मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसे मोमेंट हुए हैं जहां पे दोनों ने एक दूसरे को बीट किया, बट अल्टीमेट विनर इज स्मॉल कैप. ठीक है, क्योंकि 10 साल का पीरियड ऐसा है कि शायद 1 या 2 बार ऐसे मौके आएंगे जहां पे इन स्मॉल कंपनी को बहुत रैली मिल सकता है. सो बिकॉज ऑफ दैट 10 इयर्स का जब हम डेटा देख रहे हैं तो स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहा है लार्ज कैप एंड मिड कैप का भी परफॉर्मेंस अच्छा है. तो उस हिसाब से देखें तो डेफिनेटली स्मॉल कैप इज ए बेटर बैक. ठीक है, अनदर पॉइंट इज नॉट टू नोटिस इज as against 1 year performance, the divergence between a small cap and mid cap has reduced. Not that all the funds of same fund houses have been taken for comparison. हमने डिफरेंट फंड को लिया है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक फंड को लिया है. इस रिपोर्ट के कुछ लिमिटेशंस हैं. सो रिस्क मेजर्स हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन. इनहेरेंटली मिड एंड स्मॉल कैप हैव हायर रिस्क रेशियो
last 1 year has been exponential for mid and small cap. अभी last 1 year में that was something exceptional. ऐसा हमेशा होता नहीं है कि 25,000 से 62,000 का रैली ले लिया, कल को अभी गिर के 53, 54, 55 में चल रहा, 50 तक आ जाए और 50 से बढ़ते हुए 1 लाख चला जाए, ऐसा नहीं होगा हमेशा, ठीक है ना. So resultant in enhancing 5 years and 10 years return of these categories significantly. So the conclusion, last, it is difficult to have one single conclusion which category is superior in short, mid or long term. Different time period throws different results. जो मैंने अभी बताया कि different phase में different category ने अपना performance दिया, outperform किया है. So the recent performance are distort the real picture of medium term and long term returns, either positively or negatively. It seems to completely an individual's view and liking of it. What we as distributor and investor have to look at while choosing a scheme and a category are the risk and return correlation together. Different investors have different risk appetite and different level of the willingness to take risk. Simply investing in a small cap or mid cap or fund because it will provide better return is not the correct way to think about it. So सिर्फ return को ध्यान पे रख के investment करना कभी भी सही नहीं होता है, कभी भी बुद्धिमानी नहीं होती है. It's always you need to understand your needs, your risk appetite, your time frame, and keeping all these things in mind, one should go for investment and choose the scheme. End of the day, I'll end with this. It's always better to diversify your portfolio in between small cap, large cap, and mid cap, so that things will be balanced, and end of the day, you will achieve all your goals. So, thank you. That's for the day.